বিজেপি বরাক উপত্যকার বঙ্গালীর ভোট চাবৰ কাৰণে সিহঁতৰ কোনো অধিকাৰ নাই। কাৰণ আমি স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা যদি আমি চাই আহোঁ, বরাক উপত্যকাত আমাৰ 15খন আসন আছিলে। এই 15খন আসনৰ পৰা আমাৰ ইয়াৰ পৰা 4টা মন্ত্ৰীও আছিলে আমাৰ কংগ্ৰেছ আমলত। আমাৰ ইয়াতে 2জন মন্ত্ৰী বহি আছে, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, তেওঁলোকে একলগত মন্ত্ৰী আছিলে। আজি আমাৰ বৰাকৰ পৰা এজন মন্ত্ৰিত্ব নাই। পৰিমল শুক্লবৈদ্য অকলে মন্ত্ৰী আছিলে, বঙ্গালী মন্ত্ৰী বৰাকবেলিৰ পৰা তেখেতে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে। কিন্তু এই পৰিমল শুক্লবৈদ্যক বনবাস পঠাইছে সাংসদ বনাই, যাতে বরাক উপত্যকাৰ পৰা কোনো নেতৃত্ব যাতে দিব নোৱাৰে। তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আহি কৈছিলে, নিৰ্বাচনৰ প্ৰাককালত আহি কৈছিলে তেখেতে যে কৃষ্ণেন্দু পালক মন্ত্ৰী দিব। কৰিমগঞ্জত গৈ কৈছিলে, আমি ভাল পাইছিলোঁ, ঠিক আছে, শিলচৰৰ পৰা নিদিয়ে, কৰিমগঞ্জৰ পৰা এজন মন্ত্ৰী দিব, আমাৰ বৰাকৰতো এজন মন্ত্ৰী পাম আমি। আজি 6 মাহ যাওয়ার পিছতো আজিলৈকে কোনো মন্ত্ৰী দিয়া নাই। আজি সিহঁতে এই কি ক'ব, ইলেকশ্যনত এই কি ক'ব? বরাক উপত্যকাত হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছৰ পৰা বৰাকক যেনেকৈ ৰাজনৈতিকভাৱে ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে, শেষ কৰিবৰ কাৰণে, আমাক মানে সংস্কৃতিটো শেষ কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰি আছে। বঙ্গালী সংস্কৃতিটো কেনেকৈ শেষ কৰিব, বৰাকৰ সংস্কৃতিটো কেনেকৈ শেষ কৰিব, বৰাকৰ ৰাজনৈতিক কেনেকৈ মেৰুদণ্ডটো শেষ কৰিব, সেইটো তেওঁলোকৰ এটা প্লেনিং। আমাৰ ইয়াতে মানুহ 2 হাত ভৰি বিজেপিত ভোট দিছে। আজি কি হ'ল, বিজেপি আজি বৰাকত এটা মন্ত্ৰিত্ব দিয়া নাই। আজি যদি দলাই ইলেকশ্যনটো আপোনালোকে চাই, সিহঁতৰ সংগঠনক বেপাৰ, কিন্তু দলাই ইলেকশ্যনত আপোনাৰ কৌশিক ৰায়ক দিছে একটা পুৰা দলাই ইলেকশ্যনৰ চাৰ্জত, আমাৰ শিলচৰৰ বিধায়কক দিছে একটা জিপিৰ চাৰ্জত। আপোনালোকে চাওক কেনেকৈ মানে সিহঁতৰ মানে মীৰ চুম 2 বাৰৰ বিধায়ক, তেখেতক দিছে একটা জিপিৰ দায়িত্ব, কৃষ্ণেন্দু পালক দিছে একটা জিপিৰ দায়িত্ব। কেনেকৈ বঙ্গালী মানুহবিলাকক এই চৰকাৰে কেনেকৈ বঙ্গালী মানুহৰ অস্তিত্ব শেষ কৰিব বিচাৰি আছে, সেইটো হ'ল সিহঁতৰ ষড়যন্ত্ৰ। এইটো ৰাইজে গম পাইছে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া ইয়াৰ পৰা 5 বাৰৰ বিধায়ক আছিলে, 2 বাৰৰ মন্ত্ৰী আছিলে, PWD নিচিনা মন্ত্ৰী আছিলে। কিন্তু আপোনালোকে দলাইখন চাওক, যে দলাইখন এটা জংঘল বনাই ৰাখিছিলে। মানুহ এইবাৰ এই লোকসভা নিৰ্বাচনত মানুহ ভাল পাই ভোট দিয়া নাই, মানুহ তেয়াতে ইয়াৰ পৰা খেদিবৰ কাৰণে ভোট দিছিলে। 2 হাত ভৰি ভোট দিছিলে যে দলাইবাসী এই জংঘলৰ পৰা যাতে মুক্তি পায়। এতিয়া এই সুদিনটো আহিছে, দলাইবাসী আপোনাৰ আজি চাওক আপোনালোকে, বিজেপিয়ে তেখেতৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় যেতিয়া অপেনিং কৰিছিলে, মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া আহিছিলে ইয়াতে, তেতিয়া আশা কৰ্মীবিলাকক অৰ্ডাৰ দি SHG কৰ্মীবিলাকক অৰ্ডাৰ দিছে, নাহিলে সিহঁতৰ মানে সুবিধাটো কাটি দিব, সেনেকুৱা ধমকি দি মানুহ আনিছিলে। তেতিয়া মানুহ 300 নাছিলে। আজি আমি অফিচটো অপেনিং কৰি আছোঁ, আৰু ৰাইজ কেনেকৈ ওলাই আহিছে, কংগ্ৰেছ কৰ্মীবিলাক কেনেকৈ উৎসাহী ওলাই আহিছে, সেইটো দেখিলে আপোনালোকে চাব যে ৰাইজ কালি 13 তাৰিখৰ অপেক্ষা কৰি আছে। 13 তাৰিখ আহিলে সেই জংঘল ৰাজৰ পৰা দলাইবাসীটো মুক্তি পাব। देखिए, रणनीति जो राजनीति की है इलेक्शन चुनाव जीतने की, वो तो ऐसे खुलेआम पे खुले मंच में और विशेष तौर पे आप भाइयों को तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ इस बार है। आप शायद वहाँ पर अभी थे, आपने भी देखा होगा कि बूथ की तैयारी, बूथ कमेटी की तैयारी और बूथ के हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह क्या है। देखिए, चुनाव हो या कोई भी जंग हो, ये सिपाहियों के आधार पर लड़ी जाती है। पहले तय टेबल पे की जाती है, लड़ी तो सिपाहियों के हौसलों के ऊपर लड़ी जाती है। और उसी तरह आज के लोकतंत्र में युद्ध नहीं होते, चुनाव होते हैं। और इस चुनाव में जो सैनिक है वो हमारा कार्यकर्ता है, उसका मनोबल आज की डेट में, आज की तारीख में बहुत ऊंचा है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि सामने कोई भी हो, मुट्ठी भर कार्यकर्ता भी अगर मनोबल उनका मजबूत हो तो अच्छे से अच्छे को जमीन चटा सकते हैं। भाई मेरे, मैं तो ज्योतिष नहीं हूँ कि आपको बताऊं कि कितने सीट जीतेंगे, क्या होंगे, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि सभी सीटों में परफॉर्मेंस अच्छा होगा। हालांकि कई जगहों पर जैसे सिदली है, यहाँ पर आज तक हमने के 15-20 साल से कैंडिडेट नहीं दिया था, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ज़मीन पर भिड़ा है, बहुत ताकत के साथ और शिद्दत से ज़मीन पे लगा है। वहाँ पे भी मैं जाकर आया हूँ, और वहाँ पे भी माहौल जो है वो वर्तमान सरकार के खिलाफ है, वहाँ की जो रूलिंग पार्टीज़ हैं उनके खिलाफ है, क्योंकि सभी तरफ यही है कि जनता का जो हो वो हो, अपना बस ठीक ठाक होना चाहिए। सर, सभी को पता है कि ये चुनाव पुराने कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से होगा, नई डिलिमिटेशन के हिसाब से नहीं हो रहा है। और
उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो मैं समझता हूं कि अंतर ज़्यादा नहीं था। और वर्तमान में जो देश के हालात और आज की परिस्थिति में विशेष तौर पर असम के जो हालात है, जिस तरीके से स्मार्ट मीटर का इशू बढ़ चढ़कर लोगों के सर पर है, लोगों को परेशान किए जा रहा है, जिस तरीके से चाय बागान अवैध तरीके से बेचे जा रहे हैं, हिल एरिया में जिस तरीके से पूरे कायदे कानून को तोड़ मरोड़ कर आदिवासी भाइयों की ज़मीन अदानी जैसे उद्योगपतियों को दी जा रही है, जिस तरीके से आज अभी मैं मेरे वक्तव्य में वहाँ पर कह रहा था कि सिलचर से धुलाई का अंतर मात्र 30 किलोमीटर का है, लेकिन ये तय करने में मुझे 1.5 घंटे का समय लगा। इतनी सड़कों की हालत धुलाई में खराब है। धुलाई की जनता ने जिस व्यक्ति को भर भर के प्यार दिया, इतनी बार यहाँ से जितवा कर भेजा, मंत्री बनाया, उस व्यक्ति ने, उस पार्टी ने आज 7 साल में जिस पार्टी की सरकार इस राज्य में है, उस पार्टी ने इस धुलाई के लिए सड़क भी नहीं बना पाए। इस धुलाई के मेरे माता बहनों के लिए अच्छा पीने का पानी तक नहीं दे पाए। यहाँ पर अगर कोई बीमार हो तो इलाज के लिए कोई अच्छा अस्पताल तक नहीं बना पाए। महंगाई आप सब लोग जानते हो कि कितनी है। 1200 रुपया तो अरुणोदय के तहत मेरी माता बहनों को देते हैं, लेकिन एक सिलेंडर ही 1100 का है। अगर घर गृहस्थी चलाने का 1 महीने का हिसाब अगर हम जोड़ेंगे, इतनी महंगाई जिस तरीके से इन्होंने बढ़ा कर रखी है और ऊपर से 18% जीएसटी जो लगा के रखी है, तो एक परिवार को घर चलाने के लिए कम से कम 5-6 हज़ार रुपये की ज़रूरत है। आपका 1200 रुपया क्या कर रहा है? ये सही तरीका है कि यहाँ से 1200 देंगे और चुपके से आपके जेब में हाथ डालकर 6000 रुपये ले जाएंगे। और मैं समझता हूँ इस देश की जनता, इस असम की जनता, इस धुलाई की जनता ये समझ चुकी है कि ये जो सरकारें हैं बीजेपी की, केंद्र में बैठी और असम में बैठी, ये केवल उद्योगपतियों की सरकार है, कॉन्ट्रैक्टरों की सरकार है। इसको आम जनता की, आम मेरे माता बहनों की, मेरे युवा साथियों की कुछ नहीं पड़ी है। ये मात्र अपने हिसाब से काम करती है और अपना और अपने परिवार का भला देखना जानती है। और इस सब का नतीजा मैं समझता हूँ इन आने वाले चुनाव में धुलाई की जनता इस सरकार को ज़रूर अपना सबक सिखाएगी। मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार। आज कांग्रेस पार्टी के धुलाई बाई इलेक्शन की तैयारी के तहत आज यहाँ पर हमने बूथ के सारे अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों की हमने अभी मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। और ये एक सेंट्रल ऑफिस है कि कैंडिडेट, इस बार हमने ऐसा किया है कि कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन संगठन उसका काम करने के लिए तैयार है। और उस हिसाब से जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये ऑफिस का यहाँ पर आज उद्घाटन किया गया है। और इस उद्घाटन समारोह में आप सब लोग आए, आप सब लोगों का मैं पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूँ। और आप जैसे आप सभी को पता है कि आने वाले 13 तारीख को पोलिंग होने जा रही है, बाई इलेक्शन होने जा रही है धुलाई में। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता सिलचर जिले का, केवल धुलाई असेंबली की बात नहीं है, पूरे सिलचर शहर का, सिलचर डिस्ट्रिक्ट का कार्यकर्ता इस चुनाव को बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा है और बड़ी जिद के साथ और बड़ी मेहनत के साथ इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए काम करने जा रहा है। आप